Good morning, children. Welcome to Maths Class 5, Chapter 12, Lines, Angles and Triangles, Part 9, Exercise 12.3. Children, we are discussing solution of exercise 12.3. Let's start. Question number 1. Identify the types of triangles and write their names. Children, you have learnt previously that there are three types of triangles on the basis of angles, and there are three types of triangles on the basis of sides. Okay, so according to that, you can identify triangles and write their names. Okay, children. The first triangle, you can see the name of this triangle is triangle ABC, and in this triangle you are given the measurement of angles. Children, in this triangle measurements of angles are given, so you will classify this triangle on the basis of angles. On the basis of angles, there are three types of triangles. So, on the basis of angles, this triangle will be acute angled triangle. Why, children? Because angle A is 80 degree, angle B is 60 degree, and angle C is 40 degree. So you can see that all angles are acute angles. Means all angles are less than 90 degree. So you can say this is an acute angled triangle. Acute angled ट्राइंगल इसका नेम देंगे चिल्ड्रन. ठीक है, और इस ट्राइंगल का जो नेम होगा ट्राइंगल ABC. ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC. ठीक है, तो इफ ऑल थ्री एंगल्स आर एक्यूट, this is called acute angled triangle. You can write the spelling here, triangle. I have written the symbol. Number B, children, PQR, triangle PQR ये ट्रायंगल का नेम है. और इसका क्लासिफिकेशन क्या है चिल्ड्रन? यू कैन सी डैट वन एंगल इज राइट एंगल, मीन्स 90 डिग्री. सो ऑब्वियसली दिस इज राइट एंगल्ड ट्राइंगल. इस ट्राइंगल का नेम हो जाएगा चिल्ड्रन राइट एंगल्ड ट्राइंगल. ठीक है, और ये हो गया ट्राइंगल PQR. क्लासिफिकेशन हो गया राइट एंगल ट्राइंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, और नेम हो गया ट्राइंगल PQR. अब नंबर C देखिए चिल्ड्रन. You are not given the angles in this triangle. You are given the length of sides. First side is 3 centimeter, second side is 3 centimeter, third side is 3 centimeter. You can see all sides are equal. The triangle in which all sides are equal are called equilateral triangle. You know, EQUILATERAL, equilateral triangle. And the name of triangle is triangle DEF. Triangle DEF. ठीक है चिल्ड्रन. उसी ढंग से नंबर D, 3 centimeter, 3 centimeter, 4 centimeter. Again you are given sides, but two sides are equal. You can see that two sides are equal. So triangle in which two sides are equal are called isosceles triangle. You know, ISOSCELES, isosceles triangle.
and the name of triangle is triangle SUT या STU, triangle STU. Next triangle children, you are given the angle and you can see that only one angle is given. Angle Q is 125 degree and 125 degree is obtuse angle children. This is more than 90 degree. So you know a triangle in which one angle is obtuse is called obtuse angled triangle. So you can classify it as obtuse angled triangle and name of the triangle is triangle PQR. ठीक है. एंड नंबर F देखिए, अगेन साइड्स आर गिवन 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर. तो यू कैन सी नो साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर दिस इज a scalene triangle according to sides. This is a scalene triangle, SCALENE, scalene triangle, TRIANGLE, scalene triangle, and name of triangle is triangle LMN. ठीक है चिल्ड्रन. तो एक क्लासिफिकेशन हो गया और ये ट्रायंगल का नेम हो गया. इस तरीके से इफ एंगल्स और साइड्स आर गिवन यू कैन आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स. ठीक है, आप 6 टाइप का ट्रायंगल का नाम याद रखेंगे तो ये सब आसानी से कर सकते हैं. अब क्वेश्चन नंबर 2 है चिल्ड्रन, फाइंड आउट वेदर अ ट्रायंगल कैन बी फॉर्म्ड विथ द गिवन एंगल्स और नॉट. आपको बताना है कि ये जो एंगल्स दिया हुआ है नंबर ए 52 डिग्री, 68 डिग्री एंड 60 डिग्री, इन एंगल से ट्रायंगल बना सकते हैं कि नहीं. ठीक है, तो ट्रायंगल बना सकते हैं कि नहीं एंगल से चिल्ड्रन, इसका एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 1, जो कि लास्ट वीडियो में पढ़ाए थे पार्ट 8 में. ट्रायंगल का 2 प्रॉपर्टी बताए थे. प्रॉपर्टी नंबर 1 था सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री. ठीक है, तो यहाँ पर एंगल्स दिया हुआ है इसलिए प्रॉपर्टी 1 का यूज करके देखेंगे चिल्ड्रन कि सम ऑफ 3 एंगल्स 180 डिग्री आता है या नहीं. अगर एंगल्स का सम एग्जैक्टली 180 डिग्री आएगा तो ट्रायंगल पॉसिबल है और अदरवाइज ये ट्रायंगल पॉसिबल नहीं होगा. ठीक है, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल कहता है कि सम ऑफ ऑल 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल मस्ट बी एग्जैक्टली 180 डिग्री, नाइदर लेस देन 180 डिग्री नॉर ग्रेटर देन 180 डिग्री. 180 से कम भी नहीं होना चाहिए एंगल का सम, 180 से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, एग्जैक्टली 180 डिग्री होना चाहिए, तभी वो ट्रायंगल पॉसिबल है. ठीक है चिल्ड्रन, तो एंगल्स गिवन आर 52 डिग्री एक्यूट एंगल है, 68 डिग्री एक्यूट एंगल है और 60 डिग्री एक्यूट एंगल है. हालांकि ये एक्यूट है या ऑब्ट्यूज है उससे मतलब नहीं है, आपको तीनों एंगल को सम करना है. ये जस्ट याद दिलाने के लिए भी लिख दे रहे हैं कि 52 90 से कम है इसलिए एक्यूट एंगल है. आप देख रहे हैं तीनों एक्यूट एंगल है चिल्ड्रन. अब यहाँ पर हमको सम करना है, तीनों एंगल्स को सम करके देखना है. सम ऑफ द 3 एंगल्स इक्वल टू 52 डिग्री प्लस 68 डिग्री प्लस 60 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री. एग्जैक्टली 180 डिग्री आ गया स्टूडेंट्स. सो अ ट्रायंगल कैन बी फॉर्म्ड, इसलिए लिख देंगे कि ट्रायंगल फॉर्म किया जा सकता है इन एंगल से. नंबर बी 54 डिग्री, 75 डिग्री, 36 डिग्री. सॉल्यूशन, एंगल्स गिवन आर 54 डिग्री acute, 75 डिग्री acute angle, 36 डिग्री acute angle. Now sum of the 3 angles equal to 54 degree plus 75 degree plus 36 degree equal to 165 degree, which is lesser than 180 degree. यहाँ पर क्या आ गया चिल्ड्रन, 165 डिग्री आ गया सम, जो कि 180 से लेस है. So a triangle cannot be formed with these angles. इसलिए इन एंगल से ट्रायंगल नहीं बना सकते हैं चिल्ड्रन, क्योंकि एंगल का सम एग्जैक्टली 180 डिग्री नहीं आ रहा है.
Number C, 105 degree, 35 degree, 40 degree. Solution: angles given are 105 degree obtuse angle, 35 degree acute angle, 40 degree acute angle. Now sum of the three angles equal to 105 degree plus 35 degree plus 40 degree equal to 180 degree, exactly 180 degree. So a triangle can be formed with these angles. D, 90 degree, 25 degree, 50 degree. Solution: angles given are 90 degree right angle, 25 degree acute angle, 50 degree acute angle. Now sum of the three angles equal to 90 degree plus 25 degree plus 50 degree equal to 165 degree, which is lesser than 180 degree. So a triangle cannot be formed with these angles. Now number E, 68 degree, 110 degree and 22 degree. Solution: angles given are 68 degree acute angle, 110 degree obtuse angle and 22 degree acute angle. Sum of three angles equal to 68 degree plus 110 degree plus 22 degree equal to 200 degree, which is greater than 180 degree. अब 180 डिग्री से ज़्यादा आ गया स्टूडेंट, तब भी पॉसिबल नहीं है ट्रायंगल बनाना. So a triangle cannot be formed with these angles. Next, 115 degree, 15 degree, 95 degree. Angles given are 115 degree obtuse angle, 15 degree acute angle, 95 degree obtuse angle. Sum of three angles equal to 115 degree plus 15 degree plus 95 degree equal to 225 degree, which is again greater than 180 degree. So a triangle is not possible with these angles. Now question number 3 children, find out whether a triangle can be formed with the given sides or not. अब यहाँ पर क्या है चिल्ड्रन, ए साइड्स दिया हुआ है. नंबर ए 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर. अभी क्वेश्चन नंबर 2 में चिल्ड्रन किए हम लोग एंगल्स का मेजरमेंट दिया हुआ था, उससे पता करना था कि वो ट्रायंगल बन सकता है कि नहीं वैसा, तो प्रॉपर्टी 1 यूज किए. अब यहाँ पर साइड्स दिया हुआ है तो इसके लिए प्रॉपर्टी 2 पढ़ाए थे चिल्ड्रन. प्रॉपर्टी 2 क्या कहता है कि सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड. इसमें याद रखना है चिल्ड्रन कि किसी भी ट्रायंगल के किसी भी दो साइड का सम तीसरे साइड से ज़्यादा होना चाहिए, तीसरे साइड से बड़ा होना चाहिए. ठीक है, तभी वो ट्रायंगल पॉसिबल है. ये तीन साइड में से किसी भी दो साइड को अगर लेकर के सम करते हैं तो जो थर्ड साइड बचता है उससे बड़ा होना चाहिए. ये प्रॉपर्टी 2 में पढ़ाए थे, तो उसी का यूज करेंगे चिल्ड्रन, क्योंकि यहाँ साइड्स दिया हुआ तो प्रॉपर्टी नंबर 2 यूज करेंगे. ठीक है, अगर प्रॉपर्टी अच्छे से नहीं समझे हैं तो पार्ट 8 वीडियो फिर से देख लीजिएगा. उसमें दोनों प्रॉपर्टी था, एक एंगल सम प्रॉपर्टी था और एक साइड के सम का प्रॉपर्टी था. ठीक है, तो प्रॉपर्टी नंबर 2 ये साइड से रिलेटेड है. तो सॉल्यूशन में लिखेंगे द थ्री साइड्स आर 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर. नाउ अब चेक करके देखते हैं किसी भी टू साइड्स को सम करके. तो पहले टू साइड्स लेते हैं चिल्ड्रन. 6 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना आया 13 सेंटीमीटर, विच इज ग्रेटर देन 8 सेंटीमीटर, क्योंकि थर्ड साइड 8 बच रहा है. अगर 6 और 7 को ऐड कर रहे हैं तो 13 आ रहा है और थर्ड साइड बच रहा है 8 जो कि बड़ा है. ठीक है, ये तो क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है. फर्स्ट टू साइड्स को सम करने से थर्ड साइड से बड़ा आया. अब देखिए 6 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर, अब ये दोनों साइड को लीजिए. 6 प्लस 8 कितना हुआ 14 सेंटीमीटर, विच इज ग्रेटर देन 7 सेंटीमीटर. तो अब 6 और 8 को ऐड किए तो 7 सेंटीमीटर जो थर्ड साइड बचा उससे बड़ा आ गया, तो ये भी ठीक है. अब एक और पेयर बन रहा है 7 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर, क्योंकि हमको किसी भी टू साइड्स का सम थर्ड साइड से बड़ा आना चाहिए. ठीक है, तभी ट्रायंगल पॉसिबल है. तो 7 प्लस 8 15 सेंटीमीटर, विच इज अगेन ग्रेटर देन 6 सेंटीमीटर. ठीक है चिल्ड्रन, तो ये क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है, प्रॉपर्टी नंबर 2 को फुलफिल कर रहा है कि सम ऑफ
any two sides of a triangle is always greater than the third side. So a triangle can be formed with these sides. अब बी नंबर में है चिल्ड्रन, 3 sides are 5 centimeter, 11 centimeter and 9 centimeter. 5 centimeter plus 11 centimeter equal to 16 centimeter greater than 9 centimeter. ठीक है, 5 centimeter plus 9 centimeter equal to 14 centimeter which is greater than 11 centimeter. ये भी सही है. 11 centimeter plus 9 centimeter equal to 20 centimeter which is greater than 5 centimeter. All three criteria are fulfilled. So a triangle can be formed with the given sides. ठीक है. अब सी देखिए, the three sides are 2 centimeter, 8 centimeter and 4 centimeter. तो 2 centimeter plus 8 centimeter equal to 10 centimeter which is greater than 4 centimeter. ये तो सही है. अब 2 centimeter plus 4 centimeter equal to 6 centimeter which is less than 8 centimeter. क्योंकि 2 और 4 को ऐड करते हैं तो तीसरा साइड 8 बचता है चिल्ड्रन. ठीक है, तो 8 से छोटा आ रहा है. तो यहाँ पर 2 साइड्स का सम थर्ड साइड से बड़ा नहीं आ रहा है, छोटा आ रहा है. सो अ ट्राइंगल कैन नॉट बी फॉर्म्ड विद दीज साइड्स. अब आगे करने का जरूरत नहीं है चिल्ड्रन, क्योंकि हमको 2 साइड का सम थर्ड से छोटा आ गया एक बार. तो अब आगे और पेयर लेने का जरूरत नहीं है यहाँ पर. ठीक है. और नेक्स्ट नंबर डी, द 3 साइड्स आर 12 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर. तो ऐड करके देखिए, 12 सेंटीमीटर प्लस 14 सेंटीमीटर इक्वल टू 26 सेंटीमीटर विच इज लेस देन 30 सेंटीमीटर. यहाँ देखिए चिल्ड्रन, फर्स्ट ही टाइम में ये 26 सेंटीमीटर जो है छोटा आ गया 30 सेंटीमीटर से. 12 और 14 को ऐड किए तो 26 आया और थर्ड साइड है 30, मतलब थर्ड साइड से छोटा आ गया 2 साइड का सम. सो अ ट्राइंगल इज नॉट पॉसिबल विथ दीज साइड्स. अब यहाँ पर फर्स्ट ही टाइम में 2 साइड्स का सम थर्ड से छोटा आ गया, तब आगे का 2 पेयर लिखने का और ज़रूरत नहीं है. यहीं से हमको पता चल गया, क्योंकि हमेशा याद रखना है कि किसी भी 2 साइड का सम थर्ड साइड से छोटा नहीं होना चाहिए. अब नंबर ई, 13 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर. Solution, the 3 sides are 13 centimeter, 15 centimeter and 20 centimeter. 13 centimeter plus 15 centimeter equal to 18 centimeter which is less than 20 centimeter. Again children, triangle cannot be formed with these sides. And next, 8 centimeter, 5 centimeter and 10 centimeter. The given sides are 8 centimeter, 5 centimeter and 10 centimeter. 8 centimeter plus 5 centimeter equal to 13 centimeter which is greater than 10 centimeter. 8 centimeter plus 10 centimeter equal to 18 centimeter which is greater than 5 centimeter. And 5 centimeter plus 10 centimeter equal to 15 centimeter which is greater than 8 centimeter. All three pairs fulfill the criteria. So a triangle can be formed with these sides. So I hope children you have understood well to use both properties of triangle. First is angle sum property and second is side sum property. ठीक है, and using these properties you can solve these types of question. तो आज के लिए इतना है चिल्ड्रन. नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 10 में फिर से मिलते हैं. तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए. और यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए चिल्ड्रन, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इन वीडियोज़ का फ़ायदा मिल सके, जो कि टोटली फ्री वीडियो है चिल्ड्रन. थैंक यू वंस अगेन.